हेलो टू ऑल। जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस के थ्रू, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम केमिस्ट्री ओलंपियाड्स में कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं और कैसे हमारा सिलेक्शन करा सकते हैं। अब तक हम डिफरेंट टॉपिक्स पर लास्ट 5-7 ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। स्टेज 2 में हमने कुछ टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कुछ हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक और टॉपिक ले रहे हैं और टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री का। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप कह सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज इसके क्वेश्चंस के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस को। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। द क्वेश्चन इज the reaction between the bromate ion and bromide ion in acidic medium resulting in the formation of bromine and water. Okay, so what we want to say here, that we are having a reaction in between bromate ion and bromide ion in acidic medium. So reaction should be BrO3 minus plus Br minus giving Br2 plus H2O. तो पहला हमसे क्वेश्चन पूछा है, राइट द स्टाइक्योमेट्रिक इक्वेशन कोरस्पोंडिंग टू दिस रिएक्शन. ओके, सो बोथ Br3 minus and Br minus are converting to Br2. तो हम कह सकते हैं इट इज अ रिवर्स रिएक्शन ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन. तो अगर इस रिएक्शन में देखें, ब्रोमेट आयन में ब्रोमीन हैज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फ्रॉम +5 it is converting to 0. So n factor of this bromate ion should be 5, and here bromide ion from -1 oxidation state it is converting to 0. So n factor is 1. इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है. तो ऐसे केस में बैलेंस करते वक्त हम क्या करेंगे, बिकॉज फॉर 1 मोल ऑफ ब्रोमेट आयन यू रिक्वायर्ड 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो रिवर्स रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, तो इनका रेशियो 1:5 होगा. तो अगर ये ब्रोमाइड 1:5 आ रहा है तो यहाँ पर 3Br2 होगा. एंड इफ यू आर टेकिंग 3Br2, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो यू कैन टेक 3H2O. एंड इफ यू आर टेकिंग 3H2O यू विल हैविंग हियर 6H+. राइट, तो दिस शुड बी द बैलेंस इक्वेशन हियर. ओके, the second part of the question, write the total order of the reaction. So rate of the reaction is given here. तो रेट ऑफ रिएक्शन में आप देखेंगे ब्रोमेट के रेस्पेक्ट ऑर्डर इज 1, ब्रोमाइड के रेस्पेक्ट ऑर्डर इज 1 एंड H+ के रेस्पेक्ट ऑर्डर इज 2. So what you can say, overall order of this reaction should be 4. तो order of this reaction should be 4. करेक्ट है, आसान क्वेश्चन है. थर्ड क्या कह रहे हैं, simplify the rate law. देखो here rate law is given that with respect to rate law, what is saying that with respect to bromate ion order is 1, with respect to bromide ion order is 1, and with respect to H+ order is 2. But because in this type of reaction H+ ion will act as catalyst, you see one more thing here. The concentration of bromate ion is given 2.5 multiplied by 10⁻⁻3. Initial H+ ion is given 1 molar and initial bromide ion is given 0.28 molar. You can see the concentration of bromate ion is very less as compared to concentration of bromide ion and concentration of H+ ion.
तो अगर ब्रोमेट आयन कंप्लीटली भी कंज्यूम हो जाए यहाँ पर, तब भी यू कैन से द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन एंड H plus ion will be negligible. So in this overall reaction, because the concentration of bromide ion and H plus ion practically remain constant, or we can say in the rate law, when all the compounds are given, practically we say that if the difference of concentrations are there, the compound which is present in excess, practically rate of reaction does not depend on that. So what we can say here, we can assume that here bromide ion and H plus ion will remain constant. So effective rate constant, or you can say observed rate constant, should be taken like this. So by simplification, what we can say, that the rate can be written like this: the K observed multiplied by concentration of bromate ion. So we can simplify the reaction in this term, right? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो यू रीड दिस पैराग्राफ. पैराग्राफ क्या कह रहा है यहाँ पर? द स्टडी ऑफ काइनेटिक्स ऑफ अबाव रिएक्शन, जो आप ऊपर वाले रिएक्शन देख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं. ए स्टूडेंट एडेड फिनोल टू द अबाव रिएक्शन मिक्सचर विच अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन. इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ब्रोमीन का फॉर्मेशन हो रहा है इस रिएक्शन में, उस ब्रोमीन को कंज्यूम कर रहा है फिनोल. ओके, और यहाँ पर एक फिनोल पर आप कह सकते हैं कि ब्रोमिनेशन हो रहा है. टू डिटेक्ट द कंप्लीशन ऑफ अबाउ मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन. ये रिएक्शन कब कंप्लीट होगी इसके बारे में बात करें. द स्टूडेंट एडेड ए ड्रॉप ऑफ dilute methyl orange solution to the reaction flask. Okay, methyl orange gets bleached by Br2, okay, and becomes colorless immediately even at very low Br2 concentration. Okay, monobromination of phenol is much faster reaction than the bromate bromide reaction. Okay, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो ब्रोमीन की प्रेजेंस में मिथाइल ऑरेंज जो है वो ब्लीच हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा. तो उसके कलर के बेस पे हम मालूम कर सकते हैं कि ब्रोमीन सॉल्यूशन में कितने टाइम तक एग्जिस्ट करेगा. ठीक नहीं है? तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भी एक स्टूडेंट ने क्या किया, 3 फ्लास्क लिए और तीनों फ्लास्क में ब्रोमेट आयन की कंसेंट्रेशन सेम रखी, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन सेम रखी, ब्रोमाइड आयन की कंसेंट्रेशन सेम रखी, लेकिन उस फ्लास्क में जो फिनोल है उसकी कंसेंट्रेशन को चेंज किया. तो यहाँ पर जब फिनोल रिएक्शन करेगा ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन का सोर्स क्या होगा? ब्रोमीन का सोर्स होगा ये रिएक्शन ब्रोमेट और ब्रोमाइड आयन की. तो देखिए इंफॉर्मेशन क्या गिवन, अगर हम थर्ड इंफॉर्मेशन को देखें कि अगर हम फिनोल की कंसेंट्रेशन इतनी ले रहे हैं तो डीकलराइजेशन में यानी ब्रोमीन का जो एग्जिस्टेंस है वहाँ पर वो 1.5 सेकेंड्स तक है. अगर हम फिनोल की कंसेंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो जो टाइम लग रहा है वो यहाँ डबल से ज़्यादा लग रहा है, फिर और डबल कर रहे हैं तो टाइम डबल से फिर भी ज़्यादा लग रहा है. ओके, और ये हम कह रहे हैं कि ब्रोमेट आयन इज एडेड इन लास्ट जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंटल रन. ओके, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप 0 टाइम पर आप स्टार्ट करोगे ब्रोमेट आयन का डालना. ओके, अब क्वेश्चन क्या है आपका, ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ फिनोल T इंक्रीजेज बाय मोर देन फैक्टर ऑफ 2. ओके, भाई ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि टाइम जो है वो डबल से भी ज़्यादा लग रहा है? तो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं हम. द डीकलराइजेशन रिएक्शन ऑफ मिथाइल ऑरेंज स्लोड डाउन एट हायर कंसेंट्रेशन ऑफ फिनोल, इसका कोई लेना देना नहीं हुआ. द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल स्लोड डाउन एट द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ फिनोल, इसका भी कोई सेंस नहीं हुआ. एट हायर कंसेंट्रेशन ऑफ फिनोल BrC6H4OH started converting to, नहीं इसका भी कोई लेना देना नहीं हुआ. फोर्थ क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ ब्रोमेट ब्रोमाइड रिएक्शन डिक्रीजेज विद प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. ये तो ठीक बात है, क्योंकि जैसे जैसे ब्रोमेट आयन की
टाइम के साथ है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ब्रोमेट के साथ में। तो जैसे जैसे ब्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन होगी तो जो ब्रोमीन का फॉर्मेशन है वो भी स्लो होता जाएगा। तो इनिशियली जितना टाइम लग रहा होगा, रेट इज नॉट कांस्टेंट, रेट डिक्रीज हो रही है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि इनिशियली जितना टाइम लग रहा होगा, सेकेंड टाइम पे ब्रोमीन की उतनी कंसंट्रेशन आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये आपका ट्रू होगा। एट हायर कंसंट्रेशन ऑफ फिनोल दी सिंप्लीफाइड रेट लो, नहीं इसका कोई सेंस नहीं हुआ। तो इन सब में आप कह सकते हो कि देन ओनली वन ऑप्शन शुड बी करेक्ट, दैट शुड बी फोर्थ, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के ऑफ ब्रोमेट ब्रोमाइड रिएक्शन यूजिंग द डाटा गिवन इन द अबाउट टेबल। ओके, अब हमें पता है, ये हम कह चुके हैं पहले से ही, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पर के ऑब्जर्व्ड ब्रोमेट आयन ऐसे लिखी जा सकती है। तो अब हम इसको के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखना चाहें तो वी कैन राइट लाइक 2.303 ओवर टी log of initial concentration of bromate ion divided by final concentration of bromate ion at time t। और ब्रोमेट आयन को हम किसके साथ लिंक कर सकते हैं? ब्रोमेट आयन को हम लिंक कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, कि कितना ब्रोमीन फॉर्मेशन हो रहा होगा, और उसको लिंक कर सकते हैं फिनॉल के साथ में। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भी इनिशियल टाइम के रेस्पेक्ट जब ये टाइम आपका 4 सेकेंड्स लग रहा है, तो यहाँ पर इसका टाइम का डिफरेंस हो गया आपका 2.5, और उसके बीच में आपका जो कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है वो हम यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि उसी रेशियो उतनी ही कंसंट्रेशन का चेंज ब्रोमेट आयन में भी आया होगा, क्योंकि जितना ब्रोमेट आयन में आया होगा उतना ही ब्रोमीन मिलेगा आपको Br2 रेशियो में मिलेगा। और सेकेंड, यहाँ से हम एक रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और सेम रेट कांस्टेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं 4:11 का रेशियो लेके। इतना टाइम यहाँ पर 6 सेकंड लगा और उसमें इतना टाइम का चेंज आया। तो इन दोनों से जो रेट कांस्टेंट हमारा आएगा, अगर वो रेट कांस्टेंट हमारा सेम आता है तो वी कैन कैलकुलेट रेट कांस्टेंट हेयर। दो अलग अलग टाइम की हम कंसंट्रेशन को इस तरह से कंपेयर करके रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द रेडियो एक्टिविटी बेसिकली। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यूरेनियम आपको गिवन है, यूरेनियम 92 238 एंड इट इज कन्वर्टिंग टू लेड 82 206। और ये कह रहे हैं कि जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन है इसमें अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इवॉल्व हो रहे हैं। तो देखिए हमें एक चीज पता है कि जब भी इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो एटॉमिक मास में जो चेंज है वो ओनली ड्यू टू अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इज नथिंग, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि जो मास में चेंज हो रहा है वो 32 का चेंज हो रहा है, और एक हीलियम का जो मास है वो 4 है। तो 32 का चेंज हो रहा है, इसका मतलब 8 हीलियम पार्टिकल शुड बी इमिटेड, यानी 8 अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे। अच्छा, दूसरा जो बीटा पार्टिकल इमिट होता है उस वक्त न्यूक्लियस में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है। एक बीटा पार्टिकल चेंज होते वक्त क्या होगा, क्योंकि हम मान सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होगा, तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा और साथ साथ में एक बीटा पार्टिकल निकल रहा होगा। तो इससे हम कहेंगे कि न्यूक्लियस में एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। साथ साथ में जब एक अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीज होगा। तो अगर हम ये देखें कि अगर 8 अल्फा पार्टिकल
इमिट हो रहे हैं यहाँ पर, तो न्यूक्लियस में जो एटॉमिक नंबर में चेंज आना चाहिए था वो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 का आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर में 10 का ही चेंज आ रहा है 16 की बजाय। इसका मतलब किसी और वजह से एटॉमिक नंबर 6 इंक्रीज भी कर रहा है। तो वो रीजन क्या हो सकता है यहाँ पर? वो रीजन हो सकता है emission of beta particle. So what we can say here, 6 beta particles are emitting. तो 8 अल्फा पार्टिकल, 6 बीटा पार्टिकल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन यूरेनियम और सैंपल इज फाउंड टू कंटेन 1.19 ग्राम ऑफ दिस and 1.03 gram of lead, and assume there was no lead initially in the ore. Okay, तो what mass of helium has escaped from ore sample? तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं आपका कि यूरेनियम 92 238 इससे बन रहा है आपका लेड, और ओर में जितना भी लेड आ रहा है वो सारा का सारा यूरेनियम से ही आ रहा है। तो अब इनिशियली आपसे कह रहे हैं कि वन सैंपल फाउंड टू, ओके इनिशियली नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही है। ये 1.19 ग्राम किसी पर्टिकुलर टाइम पर है, और लेड है 1.03 ग्राम, और अब कह सकते हैं कि साथ में आपका 8 अल्फा पार्टिकल भी है। तो व्हाट मास ऑफ हीलियम हैज एस्केप्ड फ्रॉम द, इसका मतलब है हीलियम गैस फॉर्म में बाहर निकल चुकी है, हम ये मान रहे हैं। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या सोच सकते हैं कि भाई लेड का कितना मोल बना है, या हम इसको देख सकते हैं कि भाई इनिशियली टोटल यूरेनियम होगा कितना। तो चूंकि लेड बना है आपका 1.03 ग्राम, तो अगर मोल्स के टर्म में कहें तो 1 मोल ऑफ यूरेनियम इज गिविंग 1 मोल ऑफ लेड। तो अगर मैं यूरेनियम का इनिशियल वेट देखूं तो इतना तो बचा हुआ है, 1.03 मल्टीप्लाई बाय 238 डिवाइड बाय 206। तो दिस शुड बी द, यू कैन से, वेट ऑफ यूरेनियम कन्वर्टिंग टू लेड। तो टोटल वेट ऑफ यूरेनियम कितना हो जाएगा? 1.19। तो इनिशियल टोटल वेट यूरेनियम का इतना होगा, और फाइनल वेट आप इन सब का सम करके देख सकते हैं, तो बाकी हीलियम के फॉर्म में निकल गया। ये एक दूसरा तरीका ये है कि आप देख लो कि लेड के कितने मोल बन रहे हैं। तो लेड के आपके बन रहे हैं 1.03 डिवाइडेड बाय 206। इसका 8 टाइम मोल्स आपका हीलियम बना होगा, तो हीलियम का मास आप निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, तो इतना मास हीलियम का बना होगा, तो ये मास गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो गया, राइट। एक क्वेश्चन और पूछा है, हाउ ओल्ड इज द ओर? ओके, half of uranium convert to lead in 1 million years, means the half life of uranium is given, that is 1 billion years। ये हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम गिवन है आपको, और आपसे पूछ रहे हैं कि भाई कितनी पुरानी ये और होगी। तो आप, क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव डीके है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप हाफ लाइफ और लेमडा में, लेमडा मतलब डीके कांस्टेंट है, तो यू नो दैट लेमडा शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0.693 ओवर टी हाफ। तो आपको लेमडा पता है, मतलब आप, मतलब टी हाफ पता है, तो आपको लेमडा पता है, तो लेमडा आपको क्या कह सकते हो आप कि 2.303 ओवर टी। अब आपको वो टाइम निकालना है, तो आपको इनिशियल यूरेनियम पता है, इनिशियल यूरेनियम का मास इतना है आपका, तो वो आप यहाँ पे रख दें, प्लस दिस 1.03 मल्टीप्लाई बाय 238 206, ये आपको इनिशियल मास पता है, और फाइनल मास आपको इतना बता हुआ है। तो इतना होने में जितना टाइम लगेगा वही उस और की, या आप कह सकते हो उस सैंपल की एज होगी, तो उतना पुराना होगा वो। तो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो टाइम, राइट।
ओके, देखिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और आ गया कि यूरेनियम कन्वर्ट हो रहा है Pu-239 में थ्रू ए फॉर्मेशन ऑफ ए इंटरमीडिएट न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पर एक सक्सेसिव कन्वर्जन बता रहे हैं कि यूरेनियम से पहले नेपच्यून बन रहा है और फिर प्लूटोनियम बन रहा है, और इसका डीके कांस्टेंट है K1 और इसका डीके कांस्टेंट है K2। दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब इसको मैं A मान लूं, सपोज इसको मैं B कह दूं और इसको मैं C कह दूं, तो ये सिक्वेंशियल रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूँ कि -dA/dt, तो ये होगा आपका K1 मल्टीप्लाई बाई A। और अगर मैं कहूँ कि dB/dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B किस रेट से ये फॉर्म हो रहा है? K1A रेट से ये फॉर्म हो रहा है, बट इसका डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, वो हो रहा है K2B रेट से। तो दिस शुड बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, ये हो जाएगा K2B रेट्स। आप यहाँ पर सिक्वेंशियल रिएक्शन का आगे का डेरिवेशन खुद ट्राई कर सकते हैं, जो नॉर्मल क्लासेस में आप लोग करते हो, और उस डेरिवेशन से हमारा एक रिलेशन निकल कर ये आता है कि एट एनी टाइम वी कैन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ दिस B विथ हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो concentration of this B can be expressed in the following expression, तो that expression is given। आप केवल इसी पर अब कंसंट्रेट कर सकते हैं, अगर डेरिवेशन पे आप नहीं भी जाना चाहते हैं तो देखिए अब इसी पे हम कंसंट्रेट करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा है उस पर हम आते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन यूजिंग सुटेबल अप्रोक्सीमेशन इफ द हाफ लाइफ ऑफ द डीके ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब आपको टी हाफ गिवन है, इसका टी हाफ गिवन है, इसका टी हाफ गिवन है, तो टू न्यूक्लियाई आर 23.5 मिनट्स एंड 2.35 डेज। तो देखिए अगर इसको मैं K1 के टर्म में कहूँ तो ये K1 हो गया आपका 0.693 ओवर 23.5 मिनट्स, और K2 आपका हो गया है 0.693 डिवाइडेड बाय, अब इसको भी अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूं तो पहले मैं इतने 2.35 डेज में आवर्स निकाल लूं, तो मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, और दिस मल्टीप्लाई बाय, इसको मिनट्स में निकाल लें, मल्टीप्लाई बाय 60। तो इससे एक चीज आपको मालूम चल रही है दैट K1 इज वेरी ग्रेटर देन K2। जो K2 की जो वैल्यू है वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू K1। K1 बहुत ज्यादा होगा। K2 की वैल्यू बहुत कम है, मतलब K2 इज वेरी लेस एज कंपेयर टू K1, राइट। तो हमें K1 और K2 का रेशियो मालूम चल गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि वी कैन नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ K2 विथ रेस्पेक्ट टू K1। तो देखिए अगर इसको इस तरह हम सिंप्लीफाई करें और हम K2 को K1 के रेस्पेक्ट वो छोटा मान लें, तो यहाँ पर क्या होगा कि बिकॉज K2 इज लेस, तो मैं यहाँ पर इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर आपको इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि -K1 है ये एक्सपोनेंशियली। तो अब आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका क्या बन गया, आपका ये माइनस साइन आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और K1 से K1 कैंसिल हो गया। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे कि इसकी जो कंसंट्रेशन है किसी भी टाइम पर, वो आप यूरेनियम की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय e⁻⁻K2T इस फार्मूले से निकाल सकते हैं।
राइट। तो हमें यहाँ पर इसका डेरिवेशन पे नहीं जाना था, हमें हमारे अप्रॉक्सीमेशन पे जाना था कि अप्रॉक्सीमेशन लेके इस फार्मूले को हम कैसे यूज कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द कंसंट्रेशन प्रोफाइल्स ऑफ यूरेनियम नेपच्यूनियम, ये इसको हम ए बोल दें, इसको हम बी बोल दें और इसको सी बोल दें, ठीक है नहीं, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ पता है कि यूरेनियम टाइम के साथ लगातार डिक्रीज करेगा, तो ये टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन लगातार कम होगी वो यूरेनियम की होगी, तो यहाँ पर यू लिख सकते हो आप। जो बी है वो इनिशियली इंक्रीज करेगा, इनिशियली तो बी जीरो था, एनपी था नहीं, तो जैसे जैसे यूरेनियम डिकम्पोज होगा वो बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में मैक्सिमम आके उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो ये आप बी के लिए कह सकते हो, मतलब ये आपका एनपी हो गया। और फाइनली सी लगातार बढ़ेगा आपका पीयू, तो ये आपका जो ग्राफ है ये पीयू के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वी हैव डिस्कस द काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं कि सिंपल बेसिक्स पे आ रहा है क्वेश्चन, आल्दो ये आप सिक्वेंशियल रिएक्शन का एक डेरिवेशन थोड़ा सा टफ पार्ट हो सकता है, पर यहाँ पर भी आपको खुद डिराइव करने की जरूरत नहीं होगी, कॉन्सेप्चुअली आपको देखना होगा कि हम कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो आज हम यहीं तक करते हैं, थैंक यू।